Good morning, students. So today we will start the next chapter, that is the concept of cost. Okay, the chapter is the concept of cost. This is the next chapter which we will be discussing about. Okay, so first of all, what is cost? A cost होती क्या है? Okay, this is we are discussing about the cost of production. Okay, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक प्रोड्यूसर को जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना होता है डिफरेंट फैक्टर्स को हायर करने के लिए. ओके, तो उन फैक्टर्स को जब वो हायर करता है तो उनकी सर्विसेज के बदले. ओके, generally the producer hires the factor services. Okay, there are various factors of production which we have already discussed about. Say there are the factors land, labor, capital. Okay, these are the various factors which are being used, and apart from these factors there are so many factors which are being used in the production process. Okay, and every factor do have a price or a cost इन कंसिड्रेशन ऑफ देयर सर्विसेज. ओके, हर एक फैक्टर अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन सर्विसेज के बदले उनको एक प्राइस पे करना होता है या उनकी एक कॉस्ट होती है. ओके, सो प्रोड्यूसर or every producer has to hire the factor services. Okay, because no producer do have sufficient resources or enough resources to produce on their own. Okay, किसी भी प्रोड्यूसर के पास sufficient resources या सारे resources अपने पास नहीं होते हैं कि वो अपनी production process start कर सके. So the producers have to hire the factor services from outside the business. Okay, and if the producers hire the factor services, obviously they have to bear a cost, or they have to pay a price for the factor services which are being hired from outside the business. Okay, and this price or this cost which is being incurred becomes the cost of production. Okay, प्रोडक्शन के लिए जो भी सर्विसेज हायर किए फैक्टर सर्विसेज उनके बदले उनको पे करना है. ओके, और तब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, and this cost or this price is called production cost. So what is the cost? The meaning of the cost: the amount of money spent or paid. Okay, the amount of money spent or paid for production is called cost. Okay, cost क्या होती है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in consideration of their factor services to produce a product. Okay, the amount of money paid to the factors of production in consideration of their factor services to produce a product. Okay, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर्स को पे किया गया मनी, फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर्स को फैक्टर सर्विसेज के बदले जो मनी पे किया गया वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है. ओके, सो मनी इन्वॉल्व्स. Okay, so this cost becomes the economic cost. Okay, the money is paid, and whenever the money is involved that becomes the economic concept. Okay, so the money is paid in consideration of the services, that's why this cost is called economic cost, or on the other hand it is called as production cost because it is paid for production. Okay, to produce something the cost is being incurred. The types of economic costs: there are two types of cost. One is accounting cost and the other one is economic cost. Okay, generally we consider the two types of cost. The one is economic cost and other one is accounting cost. Okay, what is the difference? We will be discussing obviously later on, but the accounting cost is the cost which is actually borne. ओके, और विच इज़ एक्चुअली पेड. दैट मीन्स ऐसी कोस्ट जो एक्चुअली पे की जाती है, दैट मीन्स जिसका फिजिकल ट्रांजेक्शन होता है. दैट मीन्स द फिजिकल ट्रांजेक्शन in which the amount of money paid by the producer to the factors. Okay, that is the physical transaction. Okay, this is called accounting cost. Okay, so accounting cost only includes such cost which are being paid आउटसाइड द बिजनेस. ऐसी कोस्ट ही अकाउंटिंग कोस्ट होती हैं जो कि आउटसाइड द बिजनेस पे की जाती हैं. ओके, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो इकोनॉमिक कोस्ट या प्रोडक्शन कोस्ट भी कह सकते हैं. द प्रोडक्शन कोस्ट हैज़ टू टाइप्स. वन इज एक्सप्लिसिट कोस्ट एंड अदर वन इज इम्प्लिसिट कोस्ट. ओके, द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कोस्ट or economic cost: explicit and implicit cost. The first one is explicit cost, that is the accounting cost. Okay,
So explicit cost, as the name suggests, that is explicit. That means this amount of money has to be paid or is paid by the producer to the factors which are hired from outside the business. ओके, कीप रिमेंबर, कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर पे करेगा, और पे किसको करेगा? फैक्टर ओनर्स को पे करेगा. ओके, सपोज लैंड हायर किया है, सो लैंड इज़ द फैक्टर, और हायर किससे करेगा? ऑनर से. लैंड ऑनर से हमने लैंड जो है लीज पे ली है या रेंट पे ली है. ओके, तो जितना मैं उसके बदले उसका रेंट पे करूँगा उस लैंड को यूज़ करने के लिए, 1 साल या 6 महीने या 1 महीने, वट एवर जो भी है, तो उस लैंड को यूज़ करने के लैंड इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड दैट obviously that should be, or that is to be owned by, or that is owned by any other person, so that is called land owner. तो मैं लैंड ओनर से लैंड जो है बोरो करता हूँ, या फिर उधार लिया या हायर किया मैंने, तो उसके बदले मुझे रेंट पे करना पड़ेगा. ओके, सो रेंट विल बी द फैक्टर कॉस्ट एंड लैंड इज़ द फैक्टर. ओके, उस लैंड की सर्विस मैं यूज़ करूँगा और उस सर्विस के बदले मैं रेंट पे करूँगा. सो रेंट इज़ द फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो बीइंग द बिजनेसमैन और द एंटरप्रेन्योर और द प्रोड्यूसर, मुझे लैंड का रेंट पे करना पड़ा, बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ा. ओके, या मैंने लेबर पावर हायर किया है, लेबरर्स हायर किए हैं, तो उनके बदले उनको रेम्यूनरेशन या कॉम्पनसेशन या वेजेस मुझे पे करने पड़ेंगे. सो दैट कॉम्पनसेशन और वेजेस becomes the factor cost or the cost. Okay, and the labor or the labor force is द फैक्टर. ओके, सो फैक्टर ओनर्स को जो मनी पे किया जाता है वो हमारी कॉस्ट होती है. ओके, लेकिन अगर वो कॉस्ट आउटसाइड द बिजनेस पे की जा रही, दैट मीन्स अगर फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो हमने बिजनेस के बाहर से हायर किए हैं, ओके, इफ़ वी हैव, और इफ़ द प्रोड्यूसर हैज़ हायर द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, लैंड किसी दूसरे पर्सन से ली है, मेरी खुद की नहीं है. ओके, किसी दूसरे से लिया है रेंट पे. लेबरर्स मैं बाहर से, बिजनेस के बाहर से हायर कर रहा हूँ, मैं खुद काम नहीं कर रहा है, मेरी फैमिली मेम्बर्स काम नहीं कर रहे हैं. ओके, बाहर से हायर किए गए थर्ड पर्सन है. ओके, इसी तरीके से कैपिटल, दैट मीन्स मनी. ओके, मैंने बोरो किया है किसी मनी लैंडर से या बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. ओके, दीज आर द आउटसाइड पार्टीज़. तो वहाँ पे मुझे उनके बदले रेंट या फिर वेजेस या फिर मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट आउटसाइड द बिजनेस, वो रेंट आउटसाइड द बिजनेस, और वो wages outside the business पे किए जा रहे हैं. ओके, सो द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड टू द फैक्टर ओनर्स outside the business, or the amount of money which is paid to the factors which are hired from outside the business. Okay, that amount of money becomes explicit cost, or that is accounting cost, because it generates or it creates a physical transaction. यहाँ पे हमें physical transaction create होती दिख रही है कि वो पैसा जा रहा है बाहर. Okay, actually pay किया गया, you can say the amount of money is actually paid to someone who are outside the business. Okay, ये actually में pay किया गया है outside the business. Okay, एंड दिस इज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. ओके, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी इन द पी एंड एल अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं. सो इट विल बी रिकॉर्डेड बाय एन अकाउंटेंट इन द पी एंड एल अकाउंट of the enterprise in the debit side in the head of, under the head of expenses or expenditure. ओके, तो ये हमारी खर्चा बन जाएगी बिजनेस का, या फिर प्रोड्यूसर के लिए खर्चा होगा. ओके, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. The next one is implicit cost. Okay, implicit or imputed cost, that is the cost which is not actually seen, which cannot be seen, or which cannot, or which do not create any physical transaction. वो cost जो कोई physical transaction create नहीं करती है, मतलब you can say it is not actually paid, ये actually में pay की ही नहीं जाती है. Okay, इसमें payments नहीं होती हैं. क्लियर, दैट मीन्स प्रोड्यूसर मनी जो है किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं करता है, पेमेंट्स एक्चुअल में होती नहीं है. ओके, इसलिए कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन जनरेट या क्रिएट नहीं हुई है. दीज आर इम्प्यूटेड कॉस्ट. ओके, छुपी हुई है, हिडन कॉस्ट है. दैट मीन्स कॉस्ट तो है, एक्सपेंसेस तो हैं. ओके, क्लियर, कॉस्ट तो अराइज हुई, मतलब फैक्टर सर्विसेज तो यूज़ हुई हैं. ओके, और जब फैक्टर सर्विसेज यूज़ होंगी तो बदले में पे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. बट कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं कि वो फैक्टर सर्विसेज विद इन द बिजनेस ही अवेलेबल थी. ओके, फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर या एक प्रोड्यूसर
मैनेजर का भी काम कर लेता है अपने बिजनेस में। ओके, अपने बिजनेस को मैनेज भी खुद ही कर लेता है, मैनेजर का काम भी खुद ही कर लेता है। दैट मीन्स उसने एक एम्प्लॉई की जो रिक्वायरमेंट हो सकती थी उसके बिजनेस में, उस रिक्वायरमेंट को खुद ही पूरा कर लिया। दैट मीन्स वही ओनर है और वही एम्प्लॉय भी बन गया, मैनेज भी वही कर रहा है। ओके, तो अगर वो मैनेजर हायर करता तो उस मैनेजर को उसे सैलरी पे करनी पड़ती। तो जो लेबर फोर्स ओके जिसकी रिक्वायरमेंट हो सकती थी, ठीक है, नाउ इट इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय द ऑनर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, तो वो पेमेंट मैनेजर को अगर वो सैलरी देता, जब मैनेजर हायर किया जाता तो वो सैलरी दी जाती, तो फिजिकल ट्रांजेक्शन थी कि सैलरी पे की गई मैनेजर को। लेकिन अब वो अपने आप को सैलरी पे नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स जो इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देती है। ओके, so implicit cost increases the expected profits। okay, या involves और includes the expected profits। ये expected profits को बढ़ा देती हैं कि ऑनर ने इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हुए कि मेरा प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरा पैसा मेरे बिजनेस में ही रह जाएगा, इसलिए उसने मैनेजर हायर नहीं किया। ओके, या अपनी खुद की लैंड या बिल्डिंग उसने यूज़ कर ली तो रेंट उसे पे नहीं करना पड़ा, मेरा खुद का लैंड है, उस पर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ। ओके, तो लैंड की कोई मार्केट वैल्यू तो ज़रूर है कि अगर मैं नहीं यूज़ करता तो किसी दूसरे को मैं रेंट पे दे देता, या मेरे पास नहीं होता तो मुझे रेंट पे लेना पड़ता। दैट मीन्स उस लैंड की एज अ फैक्टर रेंटल वैल्यू तो है, बिल्डिंग या लैंड की उस एज अ फैक्टर रेंटल वैल्यू तो है, और एज अ लेबर फोर्स या वर्क फोर्स उसकी फैक्टर सर्विसेज के बदले उसकी भी एक वैल्यू है कि उसको वेजेस या सैलरीज मिलते। अगर वो मैनेजर हायर करता तो मैनेजर को सैलरी पे करनी पड़ती, या अगर वो खुद ऑनर नहीं होता तो कहीं और जॉब कर रहा होता तो अपनी सर्विसेज जो उसने अपने ही बिजनेस में प्रोवाइड की एज अ मैनेजर और एज एन ऑनर, ओके, तो उसके बदले उसने अपने आप को सैलरी नहीं पे की, अगर वो मैनेज भी खुद ही कर रहा है। लेकिन अगर उसका खुद का बिजनेस नहीं होता तो किसी दूसरे के यहाँ पे मैनेजर का काम करता तो उसको सैलरी मिलती। दैट मीन्स उसकी उसकी फैक्टर सर्विसेज या मैनेजरियल सर्विसेज की भी एक वैल्यू है या प्राइस है जो मार्केट में उसको मिलता या उसे पे करना पड़ता। ओके, सो नाउ it is not being paid, okay, because these factor services are available within the business। factor services तो यूज़ की गई लैंड की या बिल्डिंग की या फिर मैनेजरियल सर्विसेज, ओके, लेकिन वो फैक्टर सर्विसेज विद इन द बिजनेस ही अवेलेबल थी, मतलब ऑनर की ही थी खुद की। ओके, सो when the factors or the factor services are owned by the entrepreneur or the producer himself or herself and are being used in the business, जब फैक्टर सर्विसेज ऑनर के द्वारा ही ऑन्ड हैं, ओके, ऑनरशिप उसी की है, ऑनर की ही है उन पे, और बिजनेस में वो यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनके बदले कोई कॉस्ट पे नहीं है, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा उसे। ओके, तो दैट मीन्स एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हैपन हुआ ही नहीं, फिजिकल ट्रांजेक्शन हैपन नहीं हुआ। ओके, सो फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो कोई पेमेंट हुई है ना ही कोई रिसिप्ट्स हुई है एक्चुअली। ओके, कोई मनी रिसिप्ट, दैट मीन्स ना तो कोई इनकम है और ना ही एक्सपेंडिचर हुआ बिजनेस में। तो जब ना ही कोई मीन्स पेमेंट हुई, ना रिसिप्ट्स हुई, या ना कोई एक्सपेंसेस हुए, ना इनकम हुई, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में। ओके, सो फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, सो इन अकाउंट्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर इन कंसिडर्ड or taken into account। implicit costs are not taken into account in accounting। ओके, और इन अकाउंट्स में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं क्रिएट करती हैं, क्योंकि ऑनर ने अपने आप को मैनेजर बीइंग अ मैनेजर सैलरी पे नहीं की, हालांकि उसके बिजनेस में ही पैसा रह गया, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट में से पे करना पड़ता मैनेजर को सैलरी, लेकिन अब उसने नहीं पे किया है तो उसके बिजनेस में ही रह गया। लेकिन ये उसको ट्रांजेक्शन में नहीं दिखा सकता कि मैंने अपने आप को सैलरी पे की है, ओके, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है। ओके, ना तो पेमेंट है ना ही रिसिप्ट्स हैं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट of the factors which are owned by the owner of the business। okay, business owner के पास ही है, ownership में है, owned by the business owners। okay, and it is not actually paid, ये एक्चुअल में पे की ही नहीं जाती। दैट मीन्स कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन हैपन या क्रिएट नहीं हुई, इसलिए अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड कॉस्ट। for example rent of his own land, interest of his own capital। okay, so we were discussing about the accounting cost and economic cost। okay, accounting cost involves or includes explicit cost only। okay, only explicit costs are included or considered under accounting cost because these create a physical transaction। okay, so any cost which create a physical transaction, okay, or whenever a physical transaction happens,
this can only be recorded into accounts. Okay, so accounting cost involves explicit cost only, but we are not talking about accounting cost. We will be we are discussing about the economic cost. So in economics we include both explicit and implicit cost, because economists are of the opinion that whether the costs are being paid outside the business or not, but every factor services or every factor service do have a price or a market value which is to be incurred by the producer. Okay, इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि चाहे वो कॉस्ट पे की जा रही है या आउटसाइड द बिजनेस और नहीं, वेदर फिजिकल ट्रांजेक्शन हैपन हो रही है या नहीं हो रही है, बट द इकोनॉमिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट वट एवर द फैक्टर सर्विसेज आर बीइंग यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ओके, जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है। ओके, दैट इज़ borne by the producer। ओके, सो उन मार्केट वैल्यू के बिहाफ पे हम मानते हैं हर एक फैक्टर की कॉस्ट है, आइदर दैट इज़ अवेलेबल विद इन द बिजनेस प्रमाइसिस और नॉट, चाहे वो बिजनेस प्रमाइसिस के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, हर फैक्टर सर्विस जो बिजनेस में यूज़ किया है उनकी कॉस्ट है। सो बोथ द कॉस्ट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बोथ द कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में हम दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर वेदर दे आर पेड और नॉट। So the next one is the cost function. uh, just as the production function, cost function is also the functional relation between the cost and quantity produced. Okay, so it is very simple. If the producer produces higher quantities, okay, of the products, obviously the cost of production will be higher, and if the lower quantities or lesser quantities are produced, the cost of production will be low. Okay, and algebraically it is defined as C is equals to F into QX. That means C is cost, F for function, and QX it is for the quantity of X. X is the commodity and Q is the quantity of that commodity. X means X एक commodity है, उसकी जितनी भी units हम produce करेंगे that is the quantity of X. Okay, that is related with the price of the factors. Okay, that means Q into P. This price is used for the price of factors. Okay, जो भी factors हमने यूज़ किए हैं उनके prices हैं क्यूमुलेटिव प्राइसेस। दैट मीन्स हम किसी एक सिंगल फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स यूज़ किए हैं उनके एक्यूमुलेटेड प्राइसेस की यहाँ पे बात हो रही है। सो क्वांटिटी 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई है और उन 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो है फैक्टर्स को 10 रुपीज़ पे किया। डिफरेंट फैक्टर्स को हमने अलग अलग प्राइस के रूप में 10 रुपीज़ पे किया, किसी को 2 रुपये पे किया है फॉर एग्जांपल, किसी को 4 रुपये पे किया है। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, दैट इज़ 50। ओके, एक यूनिट का नहीं है ये, 5 यूनिट्स का है। ओके, तो हमने टोटल 50 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। सो दिस विल बिकम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी हमारी 50। 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, 10 रुपीज़ हमने पे किए हैं, सो दैट बिकम्स 50 रुपीज़। ओके, दिस इज़ कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट। ओके, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो टोटल कॉस्ट होगी 5 यूनिट्स की। ओके, किसी एक सिंगल यूनिट का हम कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, so higher the output, higher will be the cost, and lesser the or lower the outputs, lesser will be the cost. okay, अगर prices में कोई change नहीं consider किया जाता है, okay, irrespective of the change in prices, the cost depends on the quantity of production। ज़्यादा produce करेंगे तो ज़्यादा cost bear करनी पड़ेगी, कम produce करेंगे तो कम cost bear करनी पड़ेगी, irrespective of the change in price। okay, factors के prices में अगर कुछ change नहीं होता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करती है डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के ऊपर। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और अगर हम कम प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी। अगर हम 10 यूनिट्स की बजाय 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते, पिछले एग्जांपल में 5 इंटू 10 किया तो 50 रुपीज़ कॉस्ट आई थी। अगर हम उसी 5 यूनिट्स की बजाय अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते, ओके,
10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो फैक्टर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता, तो 10 इंटू 10 तो हमने 100 रुपीज़ स्पेंड किए होते, दैट मीन्स 100 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट होती 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। ओके, तो प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, हम प्राइसेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करें, चेंज इन प्राइसेस, सॉरी प्राइस को तो कंसिडर करें, चेंज इन प्राइस नहीं कंसिडर करें। दैट मीन्स अगर प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं, ओके, प्राइस सेम रखा जाए तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज होएगी विद द चेंज इन आउटपुट और लेवल ऑफ आउटपुट। The next one is time element. Okay, so costs are related with the time element. On the basis of the time period, there are two types of cost. The one is short run cost and the other one is long run cost. Okay, these are related with the time period. Okay, जैसे कि हमने प्रोडक्शन में भी कहा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमने स्टडी किए थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द वेरी बेसिस ऑफ these time periods, there are two types of cost, short run and long run cost. As in the short run there are two types of factors which are being used in the production. Okay, production में हम short run में दो तरह के factors हम consider करते हैं, one is fixed factor and other one is variable factor. Okay, हम पिछले chapter में discuss किए हैं fixed factor and variable factor. Okay, short run में ही होते हैं, long run में basically सारे factors variable होते हैं, that means all the factors can be changed or their units can be changed according to the साइज़ ऑफ और द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साइज़ या स्केल के अकॉर्डिंग हम सभी फैक्टर्स के यूनिट को या क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं या कर सकते हैं। सो ऑल द फैक्टर्स इन लॉन्ग रन आर वेरिएबल फैक्टर्स, but in short run the factors are of two types, one is fixed and other one is variable. That means some factors are there in the business which cannot be changed with the size of production in short run, because short run is a very small very short time period or period of time in which some factors cannot be changed or their size or quantity cannot be changed. Okay, शॉर्ट पीरियड काफ़ी छोटा टाइम पीरियड होता है तो कुछ फैक्टर्स का साइज़ हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, ओके, मशीनरीज हैं, ओके, दीज इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। ओके, काफ़ी बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए छोटे से टाइम पीरियड में इनको चेंज या इनका साइज़ चेंज नहीं किया, ना तो इनका घटाया जा सकता है साइज़, दैट मीन्स बेचा नहीं जा सकता इतनी जल्दी, और ना ही एक्सपैंड किया जा सकता है। ओके, एंड वेयर इज़ द अदर फैक्टर्स, द वेरिएबल फैक्टर्स, दैट मीन्स the factors which can be changed with the size of production. Okay, and factors की हम बात करें, factors की services के बदले ही हम उनको पे कर रहे हैं and that becomes the cost. So fixed factors को जो हम पे करेंगे that will become the fixed cost and variable factors को जो पे किया जाएगा वो हमारी variable cost हो जाएगी। तो short run में हमारे पास business में दो तरह के factors हम यूज़ करते हैं, fixed factor, तो fixed factors को जो पे किया जाएगा वो fixed cost होगी and variable factors को जो पे किया जाएगा वो variable cost होगी। fixed factors का size सेम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के साइज़ के साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे तो उनका अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। ओके, इनिशियली भी 5 यूनिट्स हम यूज़ कर रहे थे एंड लास्ट में भी हम 5 यूनिट्स ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको सेम ही पे किया जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होएगी क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर चेंज हो रहा है। सो fixed cost, the cost which do not change with the size of production, as this is the cost which is incurred on the fixed factor or which is paid to the fixed factors of production, क्योंकि ये वो cost है जो कि fixed factors को पे की गई है। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द लैंड या फिर बिल्डिंग का जो रेंट पे किया गया है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक फिक्स ही रहता है और ये फिक्स्ड कब तक रहता है, उस फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी तक रहता है। फॉर एग्जांपल a room can occupy 5 persons, okay, or a room can occupy 4 machines. Okay, so if a producer has taken a room or a building on rent and 4 machines can be placed over there, so if initially the producer has bought a single machine, okay, he will place that machine in the same room but the rent of the room will remain same. Okay, it doesn't change with the number of machines. Okay, if the producer keeps 2 machines or buys 2 machines or 2 more machines, okay, the total machines will be 3. 2 more machines if are being purchased, the total number of machines will be 3 and the 3 machines can be easily placed in that room. Okay, वो room occupy करेगा उन 3 machines को easily, क्योंकि 4 machines easily वहाँ पे रखी जा सकती हैं। Okay, so उसने machines को ख़रीदने के लिए खर्चा किया है लेकिन rent अभी भी सेम रहेगा, जितना फर्स्ट मशीन के टाइम पे था उतना ही अब तीनों के टाइम पे भी रहेगा, रूम का रेंट चेंज नहीं होगा। ओके, ना फोर्थ मशीन भी खरीदी गई, फोर्थ मशीन भी उसी रूम में रख ली गई
If the business still expands and the producer or the businessman buys another machine, that is the fifth one, okay, पांचवी मशीन खरीदता है बिजनेस एक्सपेंशन के साथ, तो उस पांचवी मशीन को रखने के लिए उस रूम में जगह नहीं है, सो ही हैज़ टू टेक अनदर रूम ऑन रेंट, ओके, या तो उसको उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा या फिर एक दूसरा रूम जो है उसे रेंट पे लेना पड़ेगा. नाउ द रेंटल एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज with the introduction of fifth machine or overhaulation of fifth machine, the rental expenditure will increase. Okay, जब फिफ्थ मशीन जो है वो इंस्टॉल की गई है बिजनेस में, तो उसके साथ रेंटल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे. चार तो एक ही रूम में रख दी गई हैं, तो रेंटल एक्सपेंडिचर उतना ही था, चाहे एक मशीन यूज़ रखी गई या फिर चार मशीन यूज़ की गई. ओके, सो फिफ्थ मशीन के साथ जो है रेंटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ क्योंकि उसे दूसरा रूम रेंट पे लेना पड़ा. ओके, क्लियर. तो इस तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहा एक सर्टेन एक्सटेंट तक. ओके, सर्टेन एक्सटेंट तक ही फिक्स रहेगा शॉर्ट रन में. ओके, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो जाते हैं. वेयर इज़ द वेरिएबल कॉस्ट which is to be incurred or which is to be paid to the variable factors of production. So the cost which changes with the size of production, okay, because the number of factors changes with the size of production or the scale of production. Okay, the number of factors if changes with the size of production, obviously the payment made to these factors will also be increased. Okay, इफ़ द नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग, अगर फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन के साइज़ के साथ, फॉर एग्जांपल द लेबर. ओके, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें लेबर फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे. ओके, तो अगर हम 3 वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी लेसर देन द 5 वर्कर्स. ओके, एक तो हमें 5 वर्कर्स को पे करना पड़े वेजेस, एक 3 वर्कर्स को पे करना पड़े. ओके, तो 3 वर्कर्स को जो हम पे कर रहे हैं वो कम है टोटल एक्सपेंडिचर एज़ कम्पेयर टू द 5 वर्कर्स. जब 5 वर्कर्स को पे करेंगे तो ज़्यादा पे करना. फॉर एग्जांपल अगर हम 500 पर डे एक को पे कर रहे हैं तो 3 के अकॉर्डिंग 1500 हम पे करेंगे एंड 5 के अकॉर्डिंग 2500. तो 2500 इन अ डे वेजेस पे किए गए, इधर 1500 इन अ डे. ओके, सो जब 3 वर्कर्स थे तो इन अ डे जो वर्कर्स के ऊपर खर्चा था वो 1500. जब 5 वर्कर्स हो गए तो इन अ डे द एक्सपेंडिचर ऑन द वर्कर्स on the payment of wages has increased to 2500. ओके, सो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है विद द नंबर ऑफ लेबरर्स. यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे 3 थे. ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा होगा. ओके, एक नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हमने इंक्रीज एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ा होगा. ऐसा नहीं कि लेबर्स को बढ़ा के ही सिर्फ हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर में कंसिडर किया था. ओके, लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी. ओके, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद कि प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. हम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ाते जाएंगे, ओके, 15-20, वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी. बेशक से पिछले चैप्टर में हमने कहा कि अगर हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर्स को या नंबर ऑफ़ लेबर्स को इंक्रीज़ करते हैं सिर्फ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक सर्टेन एक्सटेंट प्रोडक्शन एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ता है. लेकिन कॉस्ट की जब बात की जाए तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर्स जितना मर्जी बढ़ाओ कॉस्ट बढ़ती जाएगी. ऐसा नहीं कि वो कहीं पे जाके फिक्स हो जाएगी. ओके, वो इंक्रीज़ ही होती जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाओ, लेबर्स बढ़ाओ, उनको पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा. ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होती जाती है प्रोडक्शन के स्केल या साइज़ के साथ. So these were the various types of cost. Okay, next we will discuss about the components of cost. इन जो ये जो costs हैं इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. अभी हम यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट हैं क्योंकि फैक्टर्स सारे वेरिएबल हो जाते हैं. ओके, तो अभी हम शॉर्ट रन कॉस्ट को डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे.